Dear students, today we shall complete chapter A Rat Trap from Flamingo book. This chapter highlights the theme of human predicaments. In this world, man is living. Predicaments means so many obstacles of the life, hardships of the life, obstacles of the life. Man who is surviving in this world, he has to face so many problems, so many challenges of the life. Second theme is here transformation of bad man into a good man by good behavior. The chapter highlights the theme that even a bad person can be turned into a good man if a good behavior is given towards him. And during human predicaments highlighting, Selma Lagerlof has highlighted the theme of loneliness also. Human beings are social and they can't live alone. That's why they need company of their friends, acquaintances. Let us proceed towards the story. The story begins with the poor peddler whose job is to sell the rat traps. चूहे के पिंजरे बेचने का उसका जो है वो एक काम है. He is a tramp, he is a homeless wanderer, उसका घर नहीं है. He has less income, he is getting no extra profit from selling the rat traps. So to keep his soul and body together, so he makes petty thefts. Petty thefts means small thefts. छोटी छोटी चोरियाँ भी वो करता है. One day in his mind a brilliant idea came. उसके माइंड में एक brilliant idea आता है. This is very important question. An idea can change the life of a man. And here is one idea. What is the idea? The whole world is nothing but a big rat trap. अचानक उसके गले में पिंजरे थे और वो सोच रहा था और अचानक एक आइडिया मन में आया. दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग, ये पूरा संसार कुछ नहीं है बट ए बिग रैट ट्रैप, बल्कि एक बहुत बड़ा पिंजरा है. जैसे पिंजरे के अंदर जो है चूहे जो हैं, रैट्स, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेट्स. ये मैंने पिंजरा बनाया. बेट्स क्या होता है? द ईटेबल आइटम्स, ब्रेड, चिली, हींग, जो भी हम चूहे को पकड़ने के लिए लगाते हैं. द रैट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज बेट. और जैसे ही रैट उस बेट को टच करता है, द रैट ट्रैप इज़ क्लोज्ड, वो पिंजरा बंद हो जाता है. सिमिलरली द आइडिया केम इन द माइंड ऑफ पेडलर दैट ऑल कम्फर्ट्स एंड जॉयज़ आर बेट्स. जितने भी लग्जरियस लाइफ के सामान हैं, सोर्सेज हैं, गैजेट्स हैं, जॉयज़ हैं, वो क्या हैं? एक बेट का काम करते हैं. दोज आर बेट्स. ह्यूमन्स आर एंट्रैप्ड एंड सफ़र. और जो ह्यूमन्स को यहाँ कंपेयर कर दिया रैट्स के साथ. When rats are attracted, these humans are attracted towards comforts and joys, they are trapped. वो भी उस पिंजरे में फंस जाते हैं और सारी लाइफ जो है, the whole life they suffer. You can see that some persons are busy in their business and jobs, students are busy in their study life. So here in this way he was amused by this idea that the whole world is a big rat trap. Everybody is trapped in his own business. Next, he meets a meeting with the crofter. The main second character in the story highlighted the crofter. Crofter is an old man who was a farmer earlier. An old man in grey cottage. This person was living in grey cottage. Grey cottage में वो अकेला रहता था. And it was very cold outside, so peddler wanted shelter. पैडलर जो है कुछ जगह ढूंढ रहा था, शायद रात को ठिकाना मिल जाए सोने के लिए. तो ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ द क्रॉफ्टर कॉटेज. वो नॉकिंग करता है, गेट खटखटाता है. ही वॉज वेलकम्ड बाय द क्रॉफ्टर. क्रॉफ्टर वॉज ऑल्सो अलोन एट होम. ही वॉज अलोन एज आई टोल्ड यू द थीम ऑफ लोनलीनेस. सो ही वेलकम्ड हिम. डियर स्टूडेंट्स, वी कांट अलाउ एनी unknown persons, stranger persons at our home, but that crofter who was alone at home, he also needed company, so he welcomed the peddler and for eating he offered him porridge. porridge क्या होता है? एक हॉट स्वीट डिश होती है, चाहे वो दलिया है, हलवा है, खीर है, उसको porridge दिखाने के लिए. and he offered him a cigar to smoke, ताकि वो ठंड दूर हो जाए उसकी.
and till late night he kept on playing card games with him. That's a majolist, that's card game. So they were discussing something, and meanwhile he exposed his previous job also, that he was working in the Iron Man mill, and now he has become old. That's why he was having a bozzy cow. तो ही इज़ मिल्किंग द काव, वो काव का दूध निकालता है एंड सेल्स एट क्रीमरी, और क्रीमरी पे उसको बेच देता है. देन ही शोड हिम 30 क्रोनर्स. तो आपकी जो पिछली कमाई से उसने जो 30 क्रोनर उसने कमाए हैं, तो वो वन पाउच वॉज हैंगिंग नियर द विंडो, तो ही शोड हिम 30 क्रोनर्स. द पेडलर वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मनी. When peddler saw he was attracted towards the money, and next day broke the window pane, stole the 30 kroner. So when the next morning both of them went away on their own jobs, but peddler came back, he broke the window pane. Pane क्या होता है? शीशा होता है, उसको तोड़ा और वहाँ से 30 kroner निकाल के भाग गया. तो ये था मनी के प्रति अट्रैक्ट होना ह्यूमन बींग्स का, इट्स नेचर. नेक्स्ट है so after stealing the money he went away from there. So due to fear of being caught by the police, he turned away in the forest. तो जंगल की तरफ वो भागता है ताकि पुलिस उसको पकड़ ना ले. The whole day he remained in the forest and he was tired and unable to find the way. In the evening time he wanted to come back from the forest, but he was not able to get the way. Again and again he was coming at the same point. So at this moment when he was fully tired, fully exhausted, he reminded his idea which he was taking in the beginning of the chapter, the whole world is a rat trap. तो ही थिंक दैट ही वॉज एंट्रैप्ड. नाउ इट इज़ हिज टर्न. अब वो रियलाइज़ करता है कि वो भी पिंजरे में फंस गया है. ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मनी, मनी वॉज एज ए बेट. तो ही हिमसेल्फ हैज़ एंट्रैप्ड एंड अम्यूज्ड ऑन हिज ओन आइडिया. अपने ही आइडिया पे वो अम्यूज़ करता है कि येस नाउ इट वॉज हिज टर्न. ही हिमसेल्फ, पहले वो लोगों को दिखता था कि वो फंस गया है, वो फंस गया. नाउ ही हिमसेल्फ वॉज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट. तो सडनली ही हियर्स द साउंड ऑफ द हैमर स्ट्राइक. हथौड़ों की आवाज़ आती है. तो ही वेंट्स इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जाता है. तो देखता है कि देयर वाज वन आयरन मैन मिल, रैम्स जो आयरन मिल. तो रैम्स जो आयरन मिल थी, ही एंटर्स इन दैट मिल. तो उस मिल में जाके वो एंटर करता है. Next is the invitation of Iron Master. When he went in that iron mill, two blacksmiths were doing work there in the night. तो वहाँ का जो आयरन मास्टर है वो रात को काम चेक करने आता था. He was coming on the night round. तो आयरन मास्टर mistook him for कैप्टन नील्स अलोफ. तो आयरन मास्टर उसको यूँ समझते कि शायद ये मेरा पुराना दोस्त है जिसका नाम क्या है, कैप्टन नील्स अलोफ. ये कैप्टन नील्स अलोफ है, मेरा फ्रेंड है. तो ही इन्वाइटेड हिम to celebrate Christmas. Christmas is celebrated 25th December, winter season. But peddler declined the invitation. Peddler ने वो invitation मना कर दिया because he was having the fear to be being caught there. He was having the money with him. He didn't want to enter voluntarily in the lion's den. So in this way he denied the invitation of Iron Master. But the Iron Master sent his daughter. Iron Master ने अपनी बेटी को भेजा, एडला. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर? एडला. तो थिंकिंग दैट गर्ल्स आर हैविंग मोर परसुएसिव पावर, उसमें परसुएशन पावर ज़्यादा होती है, कन्विंसिंग की पावर ज़्यादा होती है. दैट्स वाई आयरन मास्टर सेंड हिज डॉटर एडला. तो एडला इन्वाइटेड पेडलर सो कंपैशनेटली. पहले उसको लगा कि द पेडलर वॉज फुल ऑफ फियर, अफ्रेड, पूरा डरा हुआ है. आइदर ही इज़ अ प्रिजनर और ही हैड स्टॉलन समथिंग एल्स. या तो एक जेल से भागा हुआ कैदी है या इसने कुछ चुरा लिया. आफ्टर वॉचिंग द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेडलर, एडलर रियलाइज दिस थिंग, बट शी इग्नोर्ड दैट थिंग एंड इन्वाइटेड हिम टू सेलिब्रेट क्रिसमस एज शी वॉज सेंट बाय हर ओन फादर. शी टुक हिम इन कॉन्फिडेंस. उसे अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट हिज विजिट एट देयर हाउस, because as per his own wish he can go and he can come back also. So peddler felt confidence in her and accepted the invitation. There is one question also, separate questions are there.
Adler invitation and Iron Master invitation. Next is when a peddler reached at the house of Iron Master. Next point is here a real identity exposed. A real identity, who is that? वो उसका फ्रेंड है या नहीं है, वो एक्सपोज हुई वहाँ पर. कैसे? द वैलेट बाथ हिम कट हेयर एंड शेव्ड. वैलेट क्या होता है? सर्वेंट होते हैं, नौकर होते हैं. उन्होंने उसको नहलाया, उसके बाल काटे, शेव की. तो व्हेन ही वॉज टोटली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, तो पूरा वेल ड्रेस्ड हुआ, उसे अपने कपड़ों में सही बाहर आया वो. तो हीज़ रियल आइडेंटिटी रिवील्ड, उसकी जो रियल आइडेंटिटी थी वो रिवील हो गई उसके अंदर कि आयरन मास्टर रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड ही रिकॉग्नाइज्ड दैट ही वाज नॉट हिज फ्रेंड, कि ये तो उसका दोस्त ही नहीं है. मतलब जब वो साफ़ सुथरे कपड़ों में आया, नहा धो के शेव करने के बाद, रात की रोशनी में उसे यूँ लग रहा था, उसकी अपीयरेंस ऐसे लग रही थी कि मेरा फ्रेंड है. लेकिन जब देखा दिन की रोशनी में, जब उसके कपड़े बदल दिए गए, तो देखा कि तो मेरा दोस्त ही नहीं है. सो आयरन मास्टर शाउटेड एट हिम, वो चिल्लाने लग गया कि हु आर यू आर अ चीटर, तुमने मुझे बताया नहीं. एंड ही थ्रेटन टू कॉल द पुलिस, धमकी भी दी कि आई विल कॉल द पुलिस, यू आर हेयर टू रॉब मी. द देन पेडलर ट्राइड टू डिफेंड हिमसेल्फ. डिफेंड मतलब प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. ही सेड दैट ही हैड डिक्लाइंड द हिज इन्विटेशन, कि सर मैंने तो आपका इन्विटेशन डिक्लाइन किया था, मना किया था. यू सेंड योर डॉटर टू कॉल मी देयर. ऑफर टू पुट ऑन इज रैग्स एंड गो अवे. रैग्स क्या होता है? फटे पुराने कपड़े. वो कहता अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आई एम रेडी टू वियर माई ओन रैग्स. वो जो मेरे फटे पुराने कपड़े हैं, मैं उसको डालने के लिए अभी भी तैयार हूँ. एंड आई विल गो बैक. तो व्हेन ही वॉज गोइंग बैक, एज आयरन मास्टर सेड हिम गेट आउट फ्रॉम हिज हाउस, तो जब वो जा रहा था, आयरन मास्टर्स डॉटर इंटरफेयर. नेक्स्ट इज आयरन मास्टर डॉटर इंटरफेयर. इसमें आयरन मास्टर की डॉटर है जो एडला, वो इंटरफेयर करती है. इम्प्रॉपर टू टर्न आउट द इन्वाइटी. वो अपने फादर को कहती, पापा इट इज़ इम्प्रॉपर, ये सही नहीं है, टू टर्न आउट द इन्वाइटी. इन्वाइटी मतलब जिसको हमने इन्वाइट किया है उसको हम इस तरह से भगा दें, टर्न आउट कर दें. इट इज़ नॉट फेयर. टुडे इज़ क्रिसमस डे, वेरी होली पायस डे. एडला होल्ड हिज हैंड. एडला ने उसका हाथ पकड़ा पेडलर का. लेड हिम टू द टेबल एंड सर्व्ड फूड. तो बेटी इतनी रिक्वेस्ट थी, इतना अच्छा नेचर उसका बिहेव किया एक चोर के साथ. उन्हें नहीं पता था ये चोर है, तो उसको खाना खिलाया. और फादर हैड टू फॉलो इट. तो फादर को बात माननी पड़ी, द रिक्वेस्ट ऑफ अ डॉटर. नेक्स्ट इज क्रिसमस डे सेलिब्रेशन. तो 25th डे जिस पर्पज़ के लिए उसको घर पे लाए थे, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ. पेडलर एट क्रिसमस फिश एंड पोरी. उसको खूब खाने को दिया गया. ही एट टू मच, दिल भर के उसने खाया. और खाने के बाद वो दोपहर तक सोया भी रहा. तो इवनिंग में उसको ये खाना दिया गया. एडला गिफ्टेड हिम फादर सूट. जो उसने सूट डाला हुआ था, कोट पैंट, एडला ने कहा कि नो नीड टू रिटर्न दिस सूट, कीप इट एज ए बर्ड क्रिसमस प्रेजेंट, एज ए क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे इसे आप रख लें. ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर द नेक्स्ट क्रिसमस. नेक्स्ट क्रिसमस के लिए भी उसको इनवाइट किया कि यू कैन कम एज पर योर ओन विश इफ़ यू वांट, अगले साल भी आप आ सकते हैं. द पेडलर अमेज्ड एट हर बिहेवियर. इतना अच्छा बिहेवियर देखकर पेडलर जो था, ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी द बिहेवियर ऑफ एडला. दिस वॉज द गुड बिहेवियर which brought a great change in the mind of in the personality of a peddler. Let us see what happened further. Next is the peddler's theft highlighted exposed. पैडलर की जो चोरी है वो हाईलाइट हुई, जो उसने चोरी की थी क्रॉफ्टर के घर में. नेक्स्ट मॉर्निंग द पैडलर्स थेफ्ट एक्सपोज्ड इन चर्च. नेक्स्ट मॉर्निंग में एडलाज एंड हर फादर वेंट टू चर्च वाइल पैडलर वॉज स्लीपिंग एट होम. तो जब वो वहाँ पर गए, तो आयरन मास्टर वरीड अबाउट हिज सिल्वर स्पून. देयर दे केम टू नो दैट. वहाँ उन्हें पता चला कि जो पैडलर है और उनकी कंपनी में जो काम करता था क्रॉफ्टर, पैडलर हैड स्टॉलन मनी फ्राम देयर. एक रेड ट्रैप सेलर था जिसने उसके घर से पैसे चुराए हैं. तो आयरन मास्टर वॉज वरीड अबाउट हिज सिल्वर स्पून. आयरन मास्टर को चिंता होने लगी कि शायद वो अपने घर से सिल्वर स्पून उठाकर वो भाग जाएगा, वो चोर है जिसको हम घर पे छोड़ के आए हैं. रश्ड बैक टू होम. द बोथ फादर एंड डॉटर रश्ड बैक टू होम. But when they reached at home, they found that the peddler had gone, but had taken nothing with him.
वो वहाँ से जा चुका है और वैलेट से कंफर्म किया तो दे टोल्ड दैट ही हैड टेकन नथिंग विद हिम, रादर ही लेफ्ट ए लिटिल पैकेज फॉर द गर्ल, कि वो एडला मैम के लिए एक पैकेट छोड़ के गए हैं। तो व्हेन दे ओपन द पैकेज दैट ब्रॉट ए ग्रेट चेंज इन द पैडलर। When the Adla opened the package, in that package there was even small rat trap, छोटा सा पिंजरा था। 30 kroner नोट्स थे, वो रिंकल नोट्स, 3 रिंकल नोट्स, 10 kroner नोट्स एंड ए लेटर, और उसमें एक लेटर था। उस लेटर का क्या मैटर था? इन द लेटर पेडलर हैड थैंक्ड एडला फॉर ट्रीटिंग हिम लाइक ए कैप्टन। उसने एडला का थैंक्स किया कि फॉर गिविंग अ बिहेवियर एज ही वॉज अ रियल कैप्टन, तो उसके कैप्टन के साथ व्यवहार किया, बिकॉज ही वॉज ए थीफ, ही वॉज मेकिंग थेफ्ट्स। उस चोर के साथ इतना रिस्पेक्ट दिया, उसको अच्छा बिहेव किया, तो ही वॉज वेरी शॉक्ड एंड दिस थिंग टच्ड हिज हार्ट। सो ही रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द मनी, ही रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द मनी टू द क्रॉफ्टर। उसमें लेटर में ये रिक्वेस्ट की कि ये पैसे जो हैं वो 30 kroners जो हैं क्रॉफ्टर को वापस कर दें, टू दैट क्रॉफ्टर हु हैड हंग द मनी नियर द विंडो टू अट्रैक्ट द पीपल लाइक अस, एंड इन द एंड ही साइन द लेटर एज कैप्टन वॉन स्टेहले। तो ये आप गौर से देखें, यहाँ पहले नाम आया था कैप्टन नील्स अलोफ और यहाँ नाम क्या है? कैप्टन वॉन स्टेहले आया है इसके अंदर। एक्चुअली दिस इज़ अ क्वेश्चन आल्सो, क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी बुक में। कैप्टन यूज़ क्यों करता है अपने नाम के साथ? दिस इज़ रियल नेम, रेड ट्रैप सैडलर का रियल कैप्टन वॉन स्टेहले, ये उसका रियल नेम है, और साथ में क्या वर्ड यूज़ करता है? कैप्टन, बिकॉज this name has given him an opportunity to improve. He has been raised to the level of the captain. उसका जो लेवल है कैप्टन तक रेज किया गया। ही वॉज गिवन ट्रीटमेंट लाइक ए कैप्टन और इन द एंड ही बिहेव्ड लाइक ए कैप्टन। सो हेयर द स्टोरी एंड्स, द स्टोरी ऑफ गुड बिहेवियर, द होल क्रेडिट गोज टू एडला। ये क्रेडिट जाता किसको है? एडला को। एडलाज गुड बिहेवियर, एडलाज काइंडनेस, Idler's sympathy, Idler's kindness, Idler's sympathy, and good devotion towards Peddler made a great change, a sea change in the personality of a peddler. So, this was the story you have to keep in your mind. I hope you well understood this story. Read the text, revise the question answers. Thank you. Have a nice day.